Okay, hello students. So now, till now, we have discussed about what do you mean by congruency and what are the conditions of the congruency. If you know the conditions of the congruency, then only you can solve the chapter of congruency of triangles. So जिन लोगों ने मेरी previous videos नहीं देखी हैं part 1 से part 4 तक, I request you all first of all go through those videos, those videos अच्छे से, ठीक है? Okay, so now in this lecture we are going to discuss few questions which is given in your NCERT class 9th exercise 7.1. So we are going to discuss the full exercise 7.1 after this lecture. After the part of the 7.1 exercise, you will be able to solve any kind of questions related to congruency of triangles. So now let us start with the exercise 7.1. So what does exercise 7.1 says? Let us see. Okay. So ठीक है, exercise 7.1 we are going to start. So question number 1 is saying a quadrilateral है, there is a quadrilateral, आर्यमन देख रहे हो? Yes sir. ठीक है, चार्ली तुम भी देखो ढंग से, ऋषभ तुम भी देखो ठीक से, and Tanmay please be. Okay, in a quadrilateral ACBD, in a quadrilateral ACBD, AC is equal to AD. AC is equal to AD and AB bisects angle A. This is given. जो भी given है वो क्या करो आप इस तरीके से लिखो. एक क्वाड्रिलेटरल है ACBD जिसके अंदर AB जो है वो क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है किसको, एंगल A को. So you have to show that, to prove that triangle ABC is congruent to triangle ABD, C and BD. So ध्यान से देखें आप सब लोग यहाँ पर कैसे करना है इसको. सबसे पहले आर्यमन इधर देखो, AC is equal to AD. Can I mark this is equal to this? Yes sir. फिर वो कह रहा है AB bisects angle A. That means AB bisect कर रहा है मतलब ये वाला जो एंगल है ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा या नहीं होगा? Yes sir होगा. क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है मतलब एक एंगल ए को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. इफ द एंगल अगर ये पूरा एंगल 60 डिग्रीज है और इसको ये बाइसेक्ट कर रहा है तो ये कितना हो जाएगा 30. इसको कहते हैं बाइसेक्ट. इसको क्या कहते हैं, बाइसेक्ट. तो ये हो गया. अब तो मैं कंडीशन, अब मैं सॉल्यूशन अगर लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा मुझे बताओ. एक तो क्या दिया हुआ है AC is equal to BD, फिर एक एंगल CAB is equal to एंगल DAB ये दिया हुआ है. दिस इज हाउ यू राइट द एंगल आर्म्स में, जैसे मैंने आपको सिखाया था. और तीसरी कंडीशन आर्यमन बता सकते हो क्या है? कंडीशन पूछ रहा हूँ, CPCD नहीं बात कर रहा हूँ मैं. CB is equals to ये जो AB है ये दोनों में कॉमन है. भाई किसी भी दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट अगर आपको प्रूव करना होता है तो कोई तीन कंडीशंस को पता करना होता है. तो ये चीज तो उसने गिवन दी S A. अब SAS होना चाहिए था ना, SAS समझ में आ रहा है. AB is a side which belongs to both the triangle. तो AB इसका भी तो AB is equal to AB जो कि क्या है, कॉमन है. क्या है, कॉमन. So therefore by SAS triangle ABC is congruent to triangle ABD. This is your answer. अब आप ये दोनों अगर ट्रायंगल हैं तो क्वेश्चन कह रहा है what do you say about BC and BD? So therefore BC is equal to BD. BC सेकंड थर्ड नंबर पे ये क्या हो गया, CPCD. ये क्या हो गया, CPCD. So BC is equal to BD. So basically ये भी क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा. क्यों? क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं. तो जो बाकी रिमेनिंग पार्ट्स होंगे वो बाय CPCD क्या होंगे, इक्वल होंगे. बात समझ में आ गई कैसे किया ये, पक्का? Yes sir. Okay. Okay. So now let us start with the question number 2. Let us see question number 2. Question 2 is saying ABCD A B C
ABCD is a quadrilateral. ABCD is a quadrilateral in which AD is equal to BC. And angle DAB is equal to CBA. CBA. Angle DAB is equal to angle CBA. देख सकते हो आर्यमन, DAB किसके बराबर है? CBA. पूरा एंगल भी जाएगा, ठीक है। Now you have to prove that triangle ABD is congruent to triangle BAC, okay, and AD is equal to BC. AD is equal to BC. तो कैसे करेंगे इसको, क्वेश्चन को देखते हैं। हाउ वी विल डू दिस। ट्राइंगल ABD का है, ABD, दिस इज योर ABD, राइट? यस सर। एंड BAC कौन सा है? ये है BAC। तो इसको मैं क्या करूंगा, ऐसे करूंगा। आई विल डू लाइक दिस। तो मुझे क्या प्रूफ करना है, अब देखते हैं। बहुत इजी है ये, बहुत इजी। ABD कौन सा है, ये देखो ध्यान से। अब दिख रहा है तुमको? मैंने इस तरीके से जानबूझ के किया। एक तो ये रेड कलर का और ये एक डॉटेड, मेक इट डॉटेड। बोलो समझ में आया नहीं आया? अब मैं अगर देखूं इस ट्राइंगल का एंगल A इज इक्वल टू इस ट्राइंगल का एंगल B है या नहीं है? बोलो। ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का ये वाला जो एंगल है और इस ट्राइंगल का इक्वल है, गिवन है। ये दिया हुआ है ना मुझे कंडीशन, क्वेश्चन में दे रहा है कि इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल इसके बराबर है। और अगर तुम देखो अच्छा ये तो हो गया। इसके पहले तुम क्या करोगे, तुम देख रहे हो कि बोथ ट्राइंगल्स आर लाइंग ऑन AB। देखो आर्यमन, ये जो AB है, AB पे ये रेड कलर का ट्राइंगल जा रहा है और इस AB पर ये ट्राइंगल जा रहा है। सो क्या AB कॉमन है? इज AB इज कॉमन? यस सर। तो AB जब ये कॉमन है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि AB इज इक्वल टू AB कॉमन, ठीक है। तो आर्यमन इस चीज को ध्यान से सुनो कि तो ये वाली दो कंडीशंस हो गई। फर्स्ट कंडीशन ये, सेकंड कंडीशन ये, और थर्ड कंडीशन उसने दे रखी है क्या? AD इज इक्वल टू BC। AD इज इक्वल टू BC। तो इसका मतलब देयरफॉर बाय SAS ट्राइंगल ABD is congruent to triangle BAC. So the condition SAS, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज थी क्या, कि both are lying on the AB। तो आर्यमन, चार्ली, आप लोग इस तरीके से देख सकते हो। कोई भी एक ट्राइंगल को पकड़ लो, ट्राइंगल की ये साइड, इसी ट्राइंगल का ये एंगल और इस ट्राइंगल की ये साइड, हम लोग इन तीनों चीजों की बात करेंगे ना। ये तीन की तो बात कर रहे हैं हम लोग, ये और ये कंटिन्यूअस में चल रही है SAS। सो बाय SAS ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। नोट कर लो। तो ये पहला पार्ट आप लोगों का क्लियर हो गया, नहीं हो गया? यस सर, हो गया। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है नेक्स्ट पार्ट? क्या बोल रहा है कि BD इज इक्वल टू AC को प्रूव करो। सेकंड पार्ट इज सेइंग BD इज इक्वल टू AC। अब अगर हम सेकंड बात करते हैं, क्या BD इज इक्वल टू AC है? अब तुम इधर देखो, BD और AC, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो तुम लोग देखो ये रहा BD और ये रहा AC, दोनों साथ करस्पॉन्डिंगली खड़े। आर्यमन, BD और AC हमने प्रूफ कर दिया दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। फर्स्ट ट्राइंगल का BD और सेकंड ट्राइंगल का AC दोनों करस्पॉन्डिंगली खड़े हुए, हाँ तो बाई सिंप्लिसिटी हो जाएगा भाई, बस इतना लिखना है।
by CPCT they are equal. By CPCT they are equal. Okay, what is the third part? The third part is angle ABD is equal to angle BAC. Angle ABD is equal to angle BAC. आर्यमन तुम बताओ क्या ये इक्वल है? यस सर। बाय CPCT। क्योंकि ये देखो ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC। तो देखो इधर ABD का मतलब क्या बात कर रहा है? ये एंगल B की बात कर रहा है, और BAC की मतलब क्या होता है? ये एंगल A की बात कर रहा है। सो एंगल ABD का मतलब क्या हो गया? ABD का मतलब क्या हो गया? व्हाट डू यू मीन बाय ABD? Central angle. So this angle is equal to this angle. So hence proved. So this was your question number 2. So I hope you are clear with this question number. Are you? Yes sir। Okay. Now let us proceed to the question number 3. Okay. Okay. So अब तक हम लोगों ने क्वेश्चन 1 and 2 खत्म कर दिए. Now we are going to start the question number 3. So ठीक है. So now question number 3. Let us see the question number 3. क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है? AD and BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू अ लाइन सेगमेंट AB. एक AB लाइन सेगमेंट जा रही है. दिस इज योर A, दिस इज योर B. ठीक है, ये यहां पे गई, ये यहां पर गई, फिर क्या हो रहा है? ये यहां पर गया. AD एंड BC, दिस इज AD एंड दिस इज BC. पंकज समझ में आ रहा है? सो AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू द लाइन. मतलब क्या हुआ? ये 90 डिग्री से AD and BC are perpendiculars to AB. समझ में आया नहीं आया? ये गिवन है. यस सर। Show that CD bisects AB. CD bisects AB. मतलब क्या हुआ? देखो इसका मतलब क्या हुआ? What does it mean? What does it mean? You have to prove it. To prove that CD bisects AB. ये हमको प्रूव करना है. Can we start right now? कौन बता सकता है? Okay. So CD bisects AB का क्या मतलब है? कि ये जो CD सेगमेंट जा रहा है, लाइन सेगमेंट, ये AB को क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है. What do you mean by bisect? Bisect मतलब it is dividing into two equal parts. इसका मतलब जब ये CD जा रहा है तो AB को क्या कर रहा है? दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. तो क्या हम कह सकते हैं? Therefore we have to prove it. OA is equal to OB. OA is equal to OB मुझको प्रूव करना है. इसके लिए मैं क्या करूंगा? What should I do? बताओ. इसके लिए मैं ये करूंगा कि मुझे कंडीशंस देखनी पड़ेगी. सबसे पहली बात, एक बात बताओ मुझे, क्या एंगल DOA is equal to एंगल COB होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट, तो जो एंगल्स होते हैं अपोजिट में, दे आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. ओके, एक चीज तो ये हो गई. फिर ये जो DOA है, इसके अंदर जो एंगल A है इज इक्वल टू एंगल B है, वो कितना डिग्रीज है? 90 डिग्रीज है. और तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस क्वेश्चन के अंदर क्या? कि टू इक्वल परपेंडिकुलर्स. क्या बोला इसने? टू इक्वल परपेंडिकुलर्स. दैट मींस AD इज इक्वल टू BC. तो क्या हम देख सकते हैं ये कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है? AAS. सो देयरफॉर बाय AAS ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? लेट अस से AOD. AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल. पंकज, AOD किसके कॉन्ग्रुएंट होगा? BOC. वेरी गुड. क्यों? क्योंकि A के इक्वल कौन है? B. O के इक्वल O है, तो D के बदले में C बच गया. सो बाय AAS triangles are congruent. Are you clear with this? ठीक है. तन्मय, चार्वी, आर्यमन, पंकज, are you clear? Okay. अब इसके बाद हम लोगों को क्या प्रूफ करना था? OA इक्वल टू OB. तो OA और OB सेम सेगमेंट पे खड़े हैं. So therefore OA is equal to OB by CPCT. By CPCT. So I hope you are clear with this question also. So till now we have discussed 3 questions in this module, and the rest of the questions we are going to cover in the next lecture. So if you like the video, please do subscribe this channel.